উনি এখানে আছেন আর আমি জয়দীপ ভাদুরী মণিপাল মুকুন্দপুরের মার্কেটিং এর হেড। আমরা আজকে আছি আর এই প্রেস কনফারেন্স আজকে আপনাদের কাছ থেকে আমরা সবাই অন বিহাফ অফ মণিপাল মুকুন্দপুর আপনাদের প্রত্যেককে অজস্র ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ বিকজ ইউ আর অলওয়েজ অল টাইম, আজকেও আপনারা অন টাইম। আজ আমরা এখানে কেন, এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে 29th of October we celebrate as a World Stroke Day। সেতে আমাদের মণিপাল মুকুন্দপুর ইউনিটের থেকে আমরা যে ব্যাপারে আজ এখানে এক হয়েছে, আমাদের মাঝে রয়েছে ডক্টর মুস্তেন্দুর প্রধান, যে এই যে প্রেজেন্ট টাইমের মধ্যে একটা নিউরো ডিজিজের একটা চরম আমরা স্পাইক বা সার্চ লক্ষ্য করি। আগে যেরকম ধরনের লোক নিউরো ডিজিজ নিয়ে আসছে সেই তুলনায় এখন অনেক বেশি আসছে। তারা কেন আসছে এবং এই স্ট্রোক, আজকে স্ট্রোক একটা খুব মারাত্মক বড় ইম্পর্টেন্ট রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্ডিয়াকের পরে নাম্বার অফ নিউরো পেশেন্ট সব থেকে হাইয়েস্ট আমাদের ভারতবর্ষে। কেন স্ট্রোক হলে আমরা এক্স্যাক্টলি কি করব, আমরা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারি আমাদের স্ট্রোক হয়েছে কি, আমরা সবাই কি করে বুঝবো যে স্ট্রোক কিভাবে, স্ট্রোকের সিমটমস এবং তার ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়। স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট নিয়ে আমরা যে কাজ করছি সেক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা কি করতে পারি সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা আজকে এখানে মোরালে সব থেকে আগে আমি একটা জিনিস হাইলাইট করব, যে কোনো কারণ হোয়াট এভার দ্য রিজন, যে কোনো কারণের জন্য বর্ধমান থেকে আমরা অনেক নিউরো পেশেন্ট স্ট্রোক তার মধ্যে একটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে এই পেশেন্টটাকে আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে এবং তাদের আমরা চিকিৎসা করছি। বর্তমানের লোকেদের আমাদের প্রতি একটা খুব ভালো আস্থা এখন অব্দি আছে, আমি সেটা রাখতে পেরেছি। বর্ধমান পার্টিকুলারলি এই কারণে বললাম কারণ আমরা যে পেশেন্টের যে ডেটা পাই প্রত্যেক হসপিটালের ক্ষেত্রে দেখি বর্তমানে একটা পেশেন্টের নিউরো ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা অবজার্ভ করি। তো আপনাদের প্রথম কোয়েশ্চেন স্যারের কাছে থাকে, প্লিজ আপনারা করতে পারেন রিগার্ডিং স্ট্রোক। नमस्ते, एक्चुअली मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं नॉट वेल वर्स्ड इन बंगाली। मेरा परिचय है कि मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार प्रधान, आई एम अ न्यूरो सर्जन। बेसिकली आई एम फ्रॉम सिक्किम बट सेटल इन बंगाल फॉर द लास्ट 15 years। और मेरा एजुकेशन हुआ कालिम्पोंग में। आई वाज इन द बोर्डिंग स्कूल फॉर द लास्ट नर्सरी टू 12। Thereafter I did my MCH neurosurgery in the Institute of National Importance, that's called Sri Chitra Institute, that's in Trivandrum। एंड उसके बाद मैं कैलकट में अभी लास्ट 15 years से काम कर रहा हूँ। देखिए ये मणिपाल से हम लोग जुड़े हुए लास्ट 6 months हो गए। इससे पहले हम लोग आमरी में काम कर रहे थे और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस कैलकट में मैं लास्ट 10 years से काम कर रहा हूँ। देखिए अब न्यूरो साइंस के एक ओवरव्यू पहले देना चाहूँगा। वन इज द स्ट्रोक, व्हाट वी ऑल नो। स्ट्रोक कैन बी ऑफ 2 types। वन इज द हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लीडिंग होता है, ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, साथ में वो इसका प्रेजेंटेशन एक ही ब्लीड हो सकता है, अलग टाइप का हो सकता है। दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रोक नंबर 2 इज इस्चेमिक स्ट्रोक, जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो ब्लड सीधा सप्लाई करता है ब्रेन को वो ब्लॉक हो जाता है। बड़ा आर्टरी ब्लॉक हो सकता है या छोटा आर्टरी ब्लॉक होता है। अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकेज द टेरिटरी वो प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। देखो सोसाइटी में जो हम जानते हैं कि स्ट्रोक में गोल्डन आवर होता है। स्ट्रोक को डिटेक्ट करने के लिए एक समय सीमित होता है जिसके अंदर हम लोग यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका मॉर्बिडिटी माने उसका जो नुकसान कम हो जाता है या तो मॉर्टेलिटी इसका डेथ कम हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रोक का गोल्डन पीरियड इज 60 minutes 1 hour। If a person comes within 60 minutes or 1 hour, the chances of recovery is very very high. The patient can go back to his normal activities, almost normal activities. But this golden period has been extended up to 4.5 hours। तो कोई भी लक्षण मिले स्ट्रोक का और आप 4.5 hours के अंदर में आएंगे, हो सकता है सिंपल इंजेक्शन से हम ट्रीट कर सकते हैं। और यदि आप स्पेशलिस्ट स्ट्रोक सेंटर में जाएंगे तो साथ में इंजेक्शन के साथ हम लोग अपने लैब में ले जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग प्लॉट निकाल सकते हैं या तो जो ब्लॉकेज है वो निकाल सकते हैं विद मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। So stroke is not so simple. It's not only injection. It's an amalgamation. It needs a teamwork. We अकेले आए हूँ. It's very injustice to the whole department of stroke. I'm a neurosurgeon, but there is a specialized जो stroke team का लीडर रहता है जो आज आने वाला था, डॉक्टर अप्रतिम चैटर्जी नहीं आ पाए, किसी कारण से नहीं आ पाए। तो एक टीम में एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है who is specially trained in stroke with who does the intervention, जो डाल के हम लोग प्लॉट को निकाल सकते हैं। साथ में न्यूरो सर्जन जहाँ पे ब्रेन के अंदर हम लोग ऑपरेशन करना पड़ सकता है एज ए लाइफ-सेविंग प्रोसीजर। What are the signs of stroke? That's very important. That has to be conveyed to the community at large.
The signs of आजकल जो एक एक्रोनिम बना हुआ है, that's called B fast, BEFAST. B is balance. एक कोई भी मरीज suddenly loses his balance, चलने में दिक्कत हो रही है. That's called balance. Imbalance हो रहा है. That means कुछ गड़बड़ है. या तो ब्रेन में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है. So it's the best judge with this doctor. You have to go to the nearest hospital. आप हम सबसे नजदीक अस्पताल में जाइए. Especially if there is a neuro-trained doctor or a neuro department. Second is E, eye signs. Suddenly अचानक किसी को दिखना कम हो गया, धुंधलापन हो गई या एक आंख से दिखना बंद हो गया, या तो डबल विजन दिख रहा है, तो वो रेड हेयरिंग साइन है, उसमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है. BE, F, फास्ट, फेस. F मतलब फेस. यदि मुंह का टेढ़ापन, बोलते बोलते टेढ़ापन आने लगते हैं, या तो देयर इज ड्रूपिंग ऑफ द वन साइड ऑफ द फेस. समझो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब बात होने लग गया, दैट मींस वो कुछ गड़बड़ है, ब्रेन में कुछ स्ट्रोक हो रहा है. दैट्स फेस, फेशियल एसिमेट्री और ड्रूपिंग. A is FBEFA. A is arm. किसी को चलते चलते या अचानक हाथ उठाने में तकलीफ हो रहा है, जो हाथ ऐसे उठा पा रहे हैं, सडनली बहुत भारीपन हो रहा है, वो पैरालिसिस का लक्षण है, इनिशियल लक्षण. तो ए मतलब आर्म. एस मतलब स्पीच है ना. एसिमेट्री भी होगा, एसिमेट्री बोलना भी कम हो जाए, मतलब दिक्कत हो सकती है, या तो फेस ड्रूपिंग हो सकता है. तो एस इज स्पीच में जैसे मैंने समझाया. और टी इज द टाइम व्हाट आई मेंशन इज द गोल्डन पीरियड. हो सके 60 मिनट्स में, 1 घंटे के अंदर जाना है, या तो 4.5 आवर्स के अंदर जाना ही है, यदि आपको न्यूरॉन्स को बचाना है. एक स्ट्रोक में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स नुकसान हो सकता है. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द टेरिटरी. सब स्ट्रोक एक समान नहीं होता, सब स्ट्रोक होपलेस नहीं होता. सो माय एडवाइस टू द कम्युनिटी एट लार्ज थ्रू योर मीडियम इज प्लीज आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ स्ट्रोक अर्ली. गो टू द नियरेस्ट मेडिकल सेंटर, प्रेफरेबली और न्यूरो सेंटर, जहाँ पे सब फैसिलिटी हो. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी ट्रीटमेंट हायर सेंटर से रेफर हो सकता है, बट प्लीज गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल. साइंस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. एक तो स्ट्रोक हुआ, न्यूरोलॉजी हुआ, एपिलेप्सी हुआ, मूवमेंट डिसऑर्डर और तो आपकी क्लिनिक पे काफी सारे पेशेंट आते हैं, which is young, someone is old, और getting affected. देखिए, पहले का धारणा यह था कि ब्लड प्रेशर हाई कारण से स्ट्रोक होता, ब्लीडिंग होता. अभी ऐसा नहीं है. देयर इज अ बिग एंजाइटी कॉल्ड यंग ऑनसेट स्ट्रोक, जो टीनेज से लेके राइट अप टू 50 इयर्स ये स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो गया, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जो सबसे हम लोग अपने जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, वी आर एक्सपोज टू अल्कोहल एज वेल एज other substances which are for use. So it's very common. But always remember, stroke starts with genes, genetic. All patients, all people who are smoking in the society do not have stroke. They must be a genetic predisposition. जीन्स किसी का कमजोर हो जाता है किसी कारण से, या अपने बनावटी ब्लड वेसल्स का अलग ही रहता है. और साथ ही में जब एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, और साथ में हम लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए बहुत कॉमन हो जाता है. एंड वी सी आजकल बहुत ही कॉमन सडन डेथ हो रहा है इन द एज 30 to 50 years. दिस कॉल्ड यंग ऑनसेट स्ट्रोक. इसीलिए